The issue is that the informal economy is being used for tax evasion in a very, very high degree. I don't think anyone pays अपने पूरे taxes तो कोई भी नहीं pay करता. And it's unfair to the people who actually do pay their taxes. मैं figures पढ़ रहा था FPR के कि only 5.2 million Yeah, it's 5.2 Pakistanis pay million. their taxes out of a total population No, of 240 and million. जब लोग ज़मीनें लेते हैं ना तो उसमें मैंने देखा जो लोग ज़मींदार हैं उन्होंने अपनी बाइंग में एक स्पेसिफिक पोर्शन लिखा होता है जो उन्होंने खिलाया होता है ऑफिस वाले बंदे को. एक मंकी भी होता ना. आई फील लाइक वो पीआईए को रन कर रहा था विदाउट मैसिंग दिस मच. Yeah, this is a serious podcast. Please. Hello and Assalamu alaikum everyone. Welcome to a brand new podcast with your host as always, Ahmed Jamal Wattu, and my very good friend, a person who talks about all things economy, very, very well versed on matters about Pakistan's economy and the struggles which Pakistan faces in terms of bureaucracy, law and order. My very good friend, Saad Abdullah. Assalamu alaikum. Happy to be here. Thank you for having me. Thank you so much, Saad. Really appreciate कि आप आए और for the ease of viewers of this podcast, जो हमारी conversation है नहीं ज़रूर ज़रूर. जो हमारी conversation है वो English और उर्दू में होगी. Sadly हमारा ऐसे ही है. But I mean देखो हमारा podcast करने का ये मकसद नहीं है कि we're going to reach hundreds of thousands of people. हमारा podcast main मकसद इसलिए है कि even if we change the viewpoints of 4 people, that's enough for me to feel like it has been a good day. हाँ लेकिन hundreds of thousands of views भी आ जाए तो कोई हर्ज नहीं है. नहीं इंशाल्लाह आएंगे. That's not what I'm saying कि नहीं आएंगे. But what I'm saying is कि even if what I say today just changes, the viewpoint just changes how 4 to 5 people feel, I will feel like that is enough for today. हाँ बिल्कुल. Because आहिस्ता पूरा पाकिस्तान भी चेंज कर सकते हैं. बिल्कुल एंड नोबल इंटेंशन से हमने ये शुरू किया एंड बड़ी कोशिश भी की आपको लाने पे इस प्लेटफॉर्म पे. काफी महीनों से मैं आपको कन्विंस कर रहा था एंड आखिरकार आपने टाइम निकाला इस पाक महीने में, रमजान के महीने में, आउट ऑफ एंड यू नो फॉर गोइंग ऑल योर अदर कमिटमेंट्स. आई नो आप बहुत बिजी आदमी हैं. ठीक है लेकिन आप आए, मैं फिर आपको अप्रिशिएट करता हूँ. थैंक यू सो मच. और इस पॉडकास्ट का आगाज करते हैं पहले क्वेश्चन से जो हमारा था अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी पे. And now this is something we both strongly feel about because 40% of Pakistan's economy is constituted by the informal sector. And informal sector 75% आपकी आवाम को employ करती है, 75%. तो it is a very big chunk of the economy जो बिल्कुल टैक्स पे नहीं करता, जो उन formal arrangements में वो आते नहीं है गवर्नमेंट के साथ. तो मेरा आपसे ये सवाल होगा कि how do we bring more people into the formal economy? How do we widen the tax net, broaden it? And also, आपके क्या thoughts हैं कि why has Pakistan failed to bring more businesses and more citizens into the formal economy? So, Ahmed, this is a very difficult to answer question because this entails such a wide array of issues that to condense it into a very small amount would be very difficult for anyone. इसका नंबर 1 इशू जो है ना वो ये है कि पाकिस्तान की इनफॉर्मल इकोनॉमी इज एट इट्स पीक नंबर्स ड्यू टू अ लॉट ऑफ फैक्टर्स. एक तो मजदूर वगैरह जो होते हैं which constitute say what you said 75% of the labor force which is being employed by this informal economy. If चक्कर ये है कि इनकी wages what 30-35,000, they're not even, most of them are not being बल्कि paid. उससे भी कम, I think 30-35,000 तो would be our ideal minimum wage. So this is what they're being paid in Lahore or in Karachi or in certain cities. लेकिन अब फर्ज करो वही बंदा is working as a laborer in his गांव, like आपके गांव में या मेरे गांव में, तो he would be earning somewhere around 22,000 rupees. To expect that person to come into your tax net, it's not going to make sense for you, for that person, and it would just be a waste of resources. So मेरे मुताबिक the entire 40% of the informal economy, इसको हमें पूरी formal economy में बताने की ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है. लेकिन
The issue is that the informal economy is being used for tax evasion in a very very high degree. ठीक है, आप सोचो the amount of money on the table. If you're saying 40%, and I'm assuming 40% of our GDP is that, so that's close to more than 150, almost 130, 140 billion dollars. So if you're assuming 130 billion dollars, the tax implications of not collecting on that is massive. आप सिर्फ एक सर्कुलरिटी ऑफ इकोनॉमी को ले लो, उसकी टैक्सेशन को ले लो. अगर 130 बिलियन डॉलर्स इज, मैं कहता हूँ उसमें से आपको कि लेबरर्स का यार ये 30 बिलियन है, 40 बिलियन है, 50 बिलियन है, take it at 50 billion, you left with 80 billion dollars. 80 billion dollars worth of taxable income is massive. You can improve structures, you can improve roads, you can build hospitals, you can build schools, you can build universities, you can improve the internet infrastructure of Pakistan. You can do a lot of stuff. The thing is that the major reason why we need to bring especially the higher earners in this informal sector to the formal economy is because of taxation purposes. It is not just because we have to see कि क्या हो रहा है हमारी इकोनॉमी में, बट मोर सो हम देखें भी, बट ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो प्लस अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज हो. अब चक्कर ये है कि I know a lot of people. We studied with a lot of people from very rich backgrounds. Issue ये है कि I don't think anyone pays अपने पूरे taxes तो कोई भी नहीं पे करता. ठीक है, तो अब कराची में मेरी मुलाकात हुई है 3-4 ताजमों से. I mean, they're doing billions of rupees worth of business. यार ये अरबपति लोग हैं, filthy rich, like way richer than you and I could ever imagine. And they're not paying anything. They're not paying anything in taxes. मैंने एक दफ़ा मुझे एक बंदे ने proudly बताया था कि मुझे ये कुछ 6-7 साल पुरानी बात है. Someone told me that मुझे जी 30 करोड़ रुपए का ना टैक्स बिल आया, तो I just gave मैंने 1.5-2 करोड़ रुपए में फारिग करा दिया था. Sad. It's saddening. It's mad. And it's unfair to the people who actually do pay their taxes. मैं figures पढ़ रहा था FBR के कि only 5.2 million Pakistanis pay their taxes out of a total population of 240. And the biggest thing is that 5.2 million is mostly made up of people who are working in other organizations or companies, not people who are owning MNCs में या जो multi-level corporations में जो काम कर रहे हैं, या फिर जो basically companies में काम कर रहे हैं. Companies have to pay in check क्योंकि उन्होंने अपने expenses deduct करने होते हैं, तो फिर वो आपकी taxation deduct करके फिर आपको पैसे देते हैं. तो that 5.2 million sort of curtails that. हाँ, तो उसमें एक काफी बड़ी proportion होती है of people जिनकी automatically taxes. हाँ, तो बात यह है कि आप देखो ना, आपका 70% of the taxes that you collect as a country is indirect tax. That's sales tax, VAT. That's like idiotic. if you buy like a pack of cigarettes, 70% of your total tax collections are based on indirect taxes. That does not make sense for any country. ठीक है, ये तो यार unfair तो it's unfair तो बिल्कुल गलत word है इसके लिए. ये तो idiotic है, ये तो symbolic है. तो फिर हम बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी की कि the people who are tasked with implementing the writ of the government, और उनकी भी हमने थोड़ी बात की before the podcast about these fallacies of bureaucrats, और उसमें कुछ opportunities होती हैं for rent seeking. कुछ तो नहीं साहब, काफी ज़्यादा opportunities होती हैं. ज़्यादा opportunities होती हैं. तो उस पे आप भी थोड़ा explain कर लें कि what are your thoughts on it, कि आप क्यों इतनी rent seeking होती है bureaucracy में. ये देखो अहमद, सबसे sad बात जो है ना कि we are allegedly an Islamic Republic of Pakistan, right? But यहाँ पे ना हर बंदे का इस्लाम सिर्फ उस हद तक होता है जहाँ तक उसका फ़ायदा हो रहा हो. When people need to do something that is outside the fold of Islam, they will do it and say, oh, no, it doesn't make a difference. Bribery has become such a culture of Pakistan that it is shocking. आप आज अपनी कोई ज़मीन बेचें, ठीक है, not you but normal person, not me, normal person की बात करते हैं,
हम फिर भी अपने कॉन्टैक्ट्स में किसी न किसी की जान पहचान होगी, हमारा फिर भी काम हो जाएगा। इस तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन आई एम टेलिंग द ट्रूथ, हमें क्या ज़रूरत है कुछ भी छुपाने। आप एक नॉर्मल बंदा, उसने अपनी ज़मीन बेचनी है, पहले तो वो फ़र्द निकलवाने जाएगा, वो जो वहाँ पे बैठा होगा ना, वो उससे कहेगा पैसे दो, ठीक है, उसको पैसे देगा, उसके फ़र्द निकलेंगे बेचारे का। उसके बाद वो जाएगा, जी मैंने अपनी ज़मीन का ट्रांसफ़र कराना है, वहाँ पे जाएगा, वो बंदा पकड़ेगा, उससे कहेगा आपका ये इशू है, कोई इशू नहीं होगा ना, कोई इशू नहीं होगा। अगर उसका प्लॉट फर्स्ट करो 2-3-4 करोड़ रुपए का, कोई इशू नहीं होगा, 20-25 हज़ार रुपया तो उसको इन एनी केस देना पड़ेगा उसको, वैसे ही विदाउट एनी इशू उसको 20-25,000 रुपीज वहां पे उनको खिलाना पड़ेगा। दिस इज रिश्वत, दिस इज ब्राइबरी, जो वैसे आप दे रहे हो। ये अभी हम ब्यूरोक्रेट्स पे नहीं आए, अभी हम लोअर लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये ऑफिस वर्कर्स हैं, ये 17वें ग्रेड के ऑफिसर्स भी नहीं है ब्रो। उसके बाद जी अगर आपका कोई इशू है विच कैन बी इजीली रेक्टिफाइड, नॉट लाइक आपके जो नाम जमीन नहीं है ये नहीं, फिर आप पैसे ज्यादा खिलाओगे, 10 लाख खिलाओगे, 15 लाख खिलाओगे, 20 लाख खिलाओगे। काफी काफी स्पेसिफिक हो रहे हो आप। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब लोग जमीनें लेते हैं ना, तो उसमें मैंने देखा जो लोग जमींदार हैं, हाँ। उन्होंने अपनी बाइंग में एक स्पेसिफिक पोर्शन लिखा होता है जो उन्होंने खिलाया होता है ऑफिस वाले बंदे को। यार मतलब खैर, नीडलेस टू से, जो ब्राइबरी कल्चर है ये रैम्पेंट है एट एवरी सिंगल लेवल, लोअर लेवल से लेके अपर लेवल तक। तो चलो ब्यूरोक्रेट्स पे हम क्या पहुंचेंगे। अब मैं ब्यूरोक्रेट्स का बताने लगा हूँ। ब्यूरोक्रेट्स का ये सीन है कि सीएसएस करने आते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं जी हमने सीएसएस करना है, हमने सीएसएस ऑफिसर पढ़ना है। अच्छा, अब इनमें से आई डोंट नो, मे बी दे कम विद द बेस्ट इंटेंशंस, मे बी दे डोंट, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। दीज पीपल हु आर सीएसएस ऑफिसर्स नो कि उनकी इंटेंशंस क्या थी जब वो आए थे। नॉर्मल बैकग्राउंड्स के भी होते हैं, अच्छे बैकग्राउंड्स के भी होते हैं, सारे लोग, बहुत ज़्यादा लोग देते हैं। अब उसमें से यार 200 बच्चे ने सिलेक्ट होना है, तो वी डोंट नो कि कौन सिलेक्ट होगा। सिलेक्ट हुए, चले गए अपनी फील्ड में स्पेसिफिक, if it's FBR, if it's police, if it's customs, it depends किस फील्ड में गए हैं, डिपेंड करता है। अब इन सारी फील्ड में से ऑब्वियसली ये तीन फील्ड्स हैं जिसमें मेजर इश्यूज हैं विद प्राइमरी, राइट, पुलिस, कस्टम्स एंड एफबीआर। एफबीआर में क्यों, अब जो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी और टैक्सेशन का इशू है, मैं इसलिए बात सारी एक्सप्लेन कर रहा था कि एफबीआर में आपको बंदा लगा, राइट, उसने एक बंदे को टैक्स बिल जाके देना है। अब फर्स्ट करो उस बंदे का 30 करोड़ रुपए का टैक्स बिल है, जिससे मैंने एक्सप्लेन किया था। तो उसने, जिस बंदे का 30 करोड़ रुपए का टैक्स बिल है, उसने उसको 1.5 करोड़ रुपया दिया, उसने उसका जीरो करके फेंक दिया, उसने 1.5 करोड़ रुपया जेब में डाल लिया। होना नहीं चाहिए। दिस इज हाउ इट वर्क्स सैडली, और दिस इज कम्प्लीटली अनफेयर टू द कंट्री। ये तरीका नहीं है कि आप अपनी खुद पॉकेट्स को लाइन नहीं कर सकते एट द एक्सपेंस ऑफ द कंट्री। आपकी कंट्री ऑलरेडी एक फेलिंग स्टेट कंसिडर हो रही है, यू डोंट हैव द फंड्स, आप हॉस्पिटल्स नहीं बिल्ड कर सकते, आप स्कूल्स नहीं बिल्ड कर सकते, यू डोंट हैव चिल्ड्रन गेटिंग एजुकेशन, यू डोंट हैव यूनिवर्सिटीज टू सेंड किड्स टू। आप कैसे, हाउ कैन यू सॉर्ट ऑफ नॉट गिव योर टैक्सेस एंड फील गुड अबाउट इट? आई डोंट अंडरस्टैंड, ये तो बहुत ही गलत बात है। यू नो, आप या तो फिर अब आपको स्पेसिफिक लीवे दी हुई है उन्होंने इन सर्टेन फैक्टर्स, आप एक्सपोर्ट्स कर रहे हो, आपके ऊपर टैक्सेशन की लीव मसले हल होते हैं काफ़ी, मतलब आप टैक्स कम होते हो, ठीक है। आप सर्विस एक्सपोर्ट्स कर रहे हो तो यूर ओनली टैक्स 1%। तो if you're not doing that, if you're earning money inside Pakistan from Pakistanis, from the Pakistani economy, you need to pay your taxes in full. On that topic, I do feel like हमारे tax rates थोड़े ज़्यादा high हैं, which is a detriment, क्योंकि हमारे tax rates high हैं and it's mostly charging people who are on a salary rather than people who are earning, being self-employed or इनकम टैक्स का थोड़ा बता सकते हो कि ब्रैकेट्स क्या हैं, तो किस इनकम ब्रैकेट में 10-20% फॉर इंस्टेंस इनकम टैक्स रेट है, और किस ब्रैकेट में आपका वो बढ़ जाता है? इज देयर एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन? हमारी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, वी नॉट टैक्स अंडर 6 लाख रुपीस, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इट इंक्रीजेस, और फिर 6 लाख रुपीस पर मंथ, 6 lakh rupees per year. per year. Yeah, I think it's 6 lakh, 8 lakh rupees per year. ये मैं दोबारा चेक करता हूँ exactly कि क्या था, क्योंकि I forgot the exact. FBR की वेबसाइट पे नहीं, I have these income tax brackets.
लेकिन इशू ये है क्योंकि they changed it I think last year. नाजरीन आपको स्क्रीन पे अभी हम दिखाएंगे कि क्या इनकम टैक्स रेट्स हैं पाकिस्तान में फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन. Yes. So at a monthly earning of 50,000, there's no tax, which comes out to like 6 lakh rupees. Uh, just to cut it short, तो हमारे पास above 1 million rupees per annum, the tax rate is 32.5% on the income you have earned above 1 million rupees per year. ठीक है, so अगर आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा कमा रहे हैं, तो you will be charged 32.5% of whatever you earn above. Oh, so the additional income or the total amount? Just say, for instance, if someone is earning 11 lakh. हाँ. No, so he will be charged 32.5% of the 1 lakh he earns on top of the Okay. 10 lakhs. अच्छा. तो बाकी अगर बाकी इसके बाद जो है अभी कितना था 32.5%, it jumps to 35% when you go above 29.5 million. अच्छा. ठीक है. Per year. Yeah, 2.95 million. अब सीन ये है कि I feel like this is too high, and this is a major reason what might be causing कि हम tax collect नहीं कर पा रहे. Salaried persons के लिए maybe this taxation works, I don't know, but I feel like it should be lower. चलो FBR has very big goals. मैं आज पढ़ रहा था डेली टाइम्स में एक आर्टिकल था कि FBR has said that they want to increase the tax net by 1.5 million people. Yeah, they did say that. We hope कि that does happen and FBR takes those steps और वो मेहनत करे इस चीज़ पे और हमारा टैक्स नेट बढ़ जाए बिकॉज इससे फिर हमारा ज़ाहिर पाकिस्तान इकोनॉमी विल इम्प्रूव. आपका योर IMF की कंडीशनैलिटीज वो भी आहिस्ता आहिस्ता पूरी हो जाएंगी. आपका प्लस आपका जो इक्विलिब्रियम है पेमेंट्स का और मतलब आपका जो शॉर्टफॉल होता है हर साल बजट में वो भी तो डिक्रीज होता है ना. तो दिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर द वेलबीइंग ऑफ द कंट्री. यार आप कंट्री में कुछ भी नहीं कर पा रहे टू फर्दर इम्प्रूव इट. यू इफ देखो बहुत ज़्यादा चीज़ें ना आपकी इकोनॉमी में लिंक्ड होती हैं. इकोनॉमी इज अ लिविंग ब्रीदिंग थिंग. If you're not getting taxes, you can't do all of the things you would like to do to improve your city, your area, or your continent, whatever. Issue ये है कि unless we are getting in the taxes that are owed, आप schools नहीं build कर पाओगे. ठीक है. अब imagine a 20-year progression of this. आप स्कूल्स बिल्ड करते हो टैक्सेशन के बेसिस पे. टैक्सेशन में लिया आपने स्कूल्स बिल्ड किया और उन्हीं टैक्स रुपीस से आप उन स्कूल्स को रन भी कर रहे हो. अब अगर वो स्कूल्स अच्छे हैं दैट मेक्स अ सिग्निफिकेंट लेबर फोर्स फर्दर डाउन द रोड. अगर आपकी लेबर फोर्स इंक्रीज होगी आहिस्ता आहिस्ता आपका GDP इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा. अगर आपका GDP पर कैपिटा भी ऑब्वियसली बेहतर होगा बिकॉज मोर ऑफ योर लेबर फोर्स इज नाउ वेल एजुकेटेड एंड इज वर्थ मोर टू योर इकोनॉमी. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लोगों को ये बात समझ नहीं आती जब आप लोगों को कहते हो हम क्यों टैक्स दें हम क्यों टैक्स दें. बात ये है कि यार आप टैक्स दोगे नहीं तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि आपकी कंट्री में बेटरमेंट हो सकती है. अब लोग क्या बात करते हैं कि जी हम क्यों टैक्स दें. हम टैक्स देंगे तो वो जो पैसे हैं वो तो इन एनी केस करप्शन में चले जाएंगे. अब यार उनको पता ये कह सकता है जब आप टैक्स नहीं दे रहे तो आप खुद भी तो इस करप्शन का हिस्सा हैं. So you're part of this then. Yeah. You're not better than any of those politicians that you feel like is corrupt if you are not giving your taxes. सही बात. You cannot choose to not give taxes just because you feel like it won't be utilized properly. क्योंकि आपका हक है ही नहीं उस पे. Just like अगर आप मुसलमान हो तो आपका ज़कात पे हक नहीं है. Like the money you're going to give for ज़कात उस पैसे पे आपका कोई हक नहीं है. You have to give it away. इसी तरह टैक्सेशन भी इट्स समथिंग दैट इज ओड एंड यू हैव टू गिव इट. लेकिन सैडली ये बात लोग समझते नहीं है एंड पीपल फील लाइक कि हम टैक्सेस नहीं देते क्योंकि हमारे यूटिलाइज नहीं होंगे पैसे. बट दैट्स नॉट अप टू यू. That's not up to you. Yes, kickback culture is very bad in Pakistan. Yes, यहाँ पे funds properly utilized नहीं होते. Yes, यहाँ पे रोड बनती है 1 करोड़ रुपए की बननी चाहिए 50 लाख रुपए की बननी चाहिए. चलो बस 25 we want people to pay their taxes. तो
जाहिर है ये आपकी बात ठीक है कि जो कॉन्फिडेंस है गवर्नमेंट में हाँ। कि वो काफी इरोड हो गया, लाइक गवर्नमेंट Obviously, इंस्टीट्यूशंस में obviously. आप डिपार्टमेंट्स में आप वो ट्रस्ट लेवल नहीं है। तो Exactly. आई गेस एज एन एवरेज पाकिस्तानी यू वुड थिंक कि मेरा पैसा जब सही तरह यूज नहीं होगा, जब वो किकबैक्स में वो लग जाएगा और वो मिस हैंडल होगा, Obviously. तो फिर आप परहेज करोगे, यू विल बी लाइक आइदर, एंड अनफॉर्चुनेटली पीपल हैव मूव्ड आउट ऑफ द कंट्री। और काफी 2 साल Brain drain पहले तो की बहुत ज़्यादा है। स्टडी थी कि 700,000 यंग पाकिस्तानीज हैव लेफ्ट द कंट्री। And these are smart Pakistanis. Like देखो, सबसे जो fascinating बात है Ahmed, about all of this is the amount of investment Pakistan has made on these kids. Right? ये बच्चे पाकिस्तान में पढ़े लिखे हैं, पाकिस्तान में बड़े हुए हैं, पाकिस्तान में they've done their degrees. Mostly, a lot of these are doctors and well-educated people, smart kids. अब चक्कर ये है कि take any Western European country, right? वो एक अपने बच्चे को बड़ा करते हैं, they're spending tax dollars on that kid, they're spending money on that kid, they're educating him, they're making him grow up, they're paying for his health, right? They're paying for his hospital bills, everything. वो बच्चा जब पाकिस्तान से उठा के लाते हैं, they don't have to go through that. उनको वो बच्चा ready made मिल रहा है, ready to work, ready to contribute to the economy, ready to pay taxes. यहाँ से उठा के बच्चा ले गए. And usually जो migrants हैं जो जाते हैं to these countries, like well educated, you know. Yeah. You're not going to get people who are normal going to these countries. वो they also don't partake in crime. और ये एक study थी UK Exactly, में, exactly. where You're being left with the worst proportion of the basically the country. If all of the people who want to go, then you're being left with the people who want to stay, Yep. or the people who cannot go rather. हाँ, जब affordability नहीं होती, because it is expensive. It's not pay about for flights. It's not about the expense. It's not about the expense. It's more so about the fact कि जो लोग जा रहे हैं, they have a value attached to them, right? जो लोग जा रहे हैं, they have a value attached to them, and जो लोग नहीं जा पा रहे, who can't get those jobs abroad, ठीक है? They don't have that value attached to them, and obviously they would be earning more money there, ठीक है? They're earning more money there, they might have a better future there, whatsoever. लेकिन the fact of the matter is कि brain drain यहाँ पे उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा पड़ता है. आपके जब King Edward से पढ़ के बच्चे निकलते हैं and they sort of start going abroad, then there's a large amount of brain drain left in Pakistan, क्योंकि वो बच्चे पाकिस्तान में काम कर रहे होते हैं, तो we would have had more competent doctors, better doctors and more doctors, right? लेकिन जब वो बच्चे बाहर चले जाएंगे, we're not left with as many doctors, we're not left with as many competent doctors. और फिर जो रह जाएंगे डॉक्टर्स, दैट मीन्स कि वो हैं जो बाहर नहीं जा सकते मोस्टली. ऑब्वियसली सम ऑफ द वेरी स्मार्ट किड्स विल वांट टू स्टे हियर, ठीक है, लेकिन लॉट ऑफ देम इफ दे कैन गो अब्रॉड दे विल. इट्स द सेम विद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इट्स द सेम विद लॉयर्स को तो बेचारों को नहीं पूछते भाई, लेकिन बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स में आप इस तरह कंसिडर कर सकते हो, और ये फील्ड्स कंट्रीब्यूट करती हैं टू पाकिस्तान ओवरऑल इकोनॉमी. सैडली चले जाते हैं, एंड अब किंग एडवर्ड एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, द फीस आर वेरी मिनिमल. आप पर ईयर एक्चुअल कॉस्ट जो आती है बच्चे पे 20-22 लाख रुपए आती है एक बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए, जो गवर्नमेंट को पैसे पड़ते हैं, एंड द चाइल्ड इज बीइंग चार्ज्ड लाख रुपए अभी नहीं मेरे ख्याल से साल की फीस किंग एडवर्ड की 1.5 लाख रुपए होगी मेरे ख्याल से. आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली क्या है, आई एम सॉरी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट पॉइंट ये है जब वो बच्चे जाएंगे तो वो जो गवर्नमेंट ने जो पैसे लगाए हैं उस बच्चे पे, दैट मनी गोज आउट. हाँ, because वो फिर जो trained doctor है, he goes and contributes to some other country. Yeah, और जो and investment उसमें he होती pays his है. taxes there. Yep. And not to Pakistan, Yeah, which is horrible. तो खैर ये तो बात होगी ना brain drain की. लेकिन हम अब बात करते हैं जो पाकिस्तान की इकोनॉमी mired है in so much debt, and this is our 24th IMF loan जो हमें मिला था. ये जो पिछले साल आपको शायद Bail out. स्टैंड बाय एग्रीमेंट थी जो आईएमएफ ने दी थी पाकिस्तान को $3 बिलियन की. तो Yeah, उसका जो लास्ट ट्रांच है वो रिसेंटली मिला है पाकिस्तान को 1.3 बिलियन डॉलर्स का. तो नाउ द न्यू फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर मोहम्मद औरंगजेब ही हैज सेड दैट पाकिस्तान विल ऑप्ट फॉर अनदर आईएमएफ लोन इन जून. Yeah, we'll need it. हम डिफॉल्ट फॉर स्टेबिलिटी. तो उसमें कुछ आईएमएफ की कंडीशंस हैं जो वी हैव टू मीट फॉर द नेक्स्ट आईएमएफ लोन. यस. तो उसमें 2-3 चीज़ें हैं जो मैं लिस्ट कर लेता हूँ हमारे ऑडियंस के लिए. तो एक तो ये है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने का क्या है आईएमएफ ने. आईएमएफ हैज एनकरेज पाकिस्तान टू अडॉप्ट फ्री फ्लोटिंग मार्केट एक्सचेंज रेट, और उसके अलावा
increased collection of taxes and privatization of key industries. तो privatization की अगर बात करें तो the biggest name which pops up for Pakistan is our international airline, Pakistan International Airlines, which has a debt of about 2.95 billion US dollars. आपको पता है PIA के काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल चल रहे थे recently. 2.95 billion It's dollars. PIA is overstaffed, it is inefficient. How do you उनकी, get to 2.95 billion dollars worth of debt on an airline which hardly has the amount of planes required to operate at that scale? How do you get Absolutely, it's so No, hard is to it- understand. और इस पे थोड़ा मैं अगर expand करूँ तो to that? Is it 2.9? No, I think it's 2.95 billion rupees. नहीं dollars. Dollars? 2.95 billion US dollars debt है. So that's close to what, 900? 890 billion rupees. Oof. तो मैं कह रहा था कि PIA जिसकी रेपुटेशन इतनी अच्छी थी when it started out कि PIA के pilots they used to train Emirates Yeah, pilots yeah, back in the day. yeah. और अब आपके ये हालात हो गए हैं कि PIA cannot operate many flights to the UK, to the US. No, not many. Or- They can't operate at all. At all, there's an Yeah. outright ban. They can't operate to the US, to Canada, to the UK, and to Europe. अच्छा, I thought कि बीच में वो flights resume हो गई No, थी no, to they're the only the only flights are to Saudi, to Dubai, and to the sort of Thailand side. I think Malaysia जा रही है, Thailand जा रही है. But the point being कि PIA has fallen. Yeah, And fallen उसको- from grace. बिल्कुल. And उसको जो है प्राइवेटाइज करने के लिए काफी एफर्ट्स हैं. PIA की दो अब एंटिटीज बन गई हैं. There's a Yeah. clean entity which has no debt, which is going to be sold to And the other highest entity bidder. which has the legacy debt. Exactly of the Yeah. amount which I mentioned, 2.95 Yeah. billion. तो इस पे आपके क्या तासुरात हैं? Do you feel कि it's good that the government has finally decided कि इस एयर कैरियर को अब प्राइवेटाइज करना है because गवर्नमेंट से संभाला नहीं जा रहा? देखो, सबसे पहले तो हम गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे. Please. No, go on. we do need to. Yeah, देखो, Ahmed, I'm sick and tired of there being no accountability in this country. ये किसने overstaff किया? Why do we have 10 people for a position that only requires one person? In every single government इदारा यही exact, मैं बोलना नहीं चाह रहा लेकिन point ये है every single government इदारा ये bleep हो जाएगा. ये bleep कर देना please. Yeah, did you hear that story about this air hostess जो PIA की थी वो कनाडा चली गई और she didn't go back like No, वो उधर ही रह गई वो भाग गई थी. you don't, this is so common. अच्छा. I think अभी कैनेडा से फ्लाइट्स आ रही है. This is so common. Like literally ये पहली दफा नहीं हुआ. This is like the 10th air hostess to sort of वहां से जो गायब हो जाए और वो बस कहती है thank you PIA because she's going to go and live in Canada. This is यार आप सोचो आपकी रिप्यूट कितनी खराब होती है कि आपकी एयर होस्टेस या आपका पायलट या कोई इस तरह बंदा लिटरली गायब हो जाए. ये किस तरह आप होने दे सकते हो यार. This is फिर से ब्लीप कर रहा हूँ यार थोड़ा परहेज किया करो. अच्छा नहीं, अब मेरे ख्याल से ये वाला पोर्शन हम दोबारा करते हैं. नहीं आई थिंक ये ठीक है. ब्लीप नहीं करना. नहीं ब्लीप करना है नहीं इसलिए मैं करूँ ना, छोड़ देना, दोबारा करते हैं. यार. नहीं फिर से नहीं करना. बट लेट्स कीप गोइंग. तो हाँ PIA को फिर हमने you have concluded कि it's a good step. We have blamed the government for past misgivings. Have we? I mean और कितना ब्लेम कर. देखो यार मेरी बात सुनो. अहमद एक मंकी भी होता ना. I feel like वो PIA को रन कर रहा था without amassing this much. This is a serious podcast. Please. अब जहाँ तक ब्लेम करने की बात है, आई एम नॉट सेइंग कि हम किसी स्पेसिफिक पर्सन पे ब्लेम डालेंगे, राइट. ये इशू ओवरऑल है. हमारे हर गवर्नमेंट इदारे में क्यों जहाँ पे एक बंदे को हायर होना चाहिए वहाँ पे क्यों 10 बंदे हायर करते हैं. लिटरली आप जाके देखो ना, इनकी जॉब्स इतनी ऑब्सोलीट हो चुकी हैं. इट मेक्स नो सेंस. व्हाई आर दे सिटिंग ऑन दैट सीट? ठीक है यार, इतनी इनएफिशिएंसीज हैं PIA में सैडली. और मैंने अभी PIA पे ट्रैवल किया अराउंड. You went to Saudi ना? Yeah, I went to Saudi and I went on PIA. और इतनी अच्छी लैंडिंग थी, इतने अच्छे पायलट थे, मैं इम्प्रेस हो गया था. जहाज के कोई हालात नहीं थे. लाइक ऑनेस्टली बहुत बुरे हालात थे जहाज के इन टर्म्स ऑफ के सफाई बस ठीक थी, सीट्स प्रॉपर्ली worn आउट थी, टीवीज थे ही नहीं पीछे इकोनॉमी क्लास में. आगे जो इकोनॉमी प्लस क्लास है उसके अंदर टीवी लगा हुआ था, लेकिन द टीवी वाज लाइक एंशिएंट.
राइट. Okay, those things don't matter. सीट ठीक थी, लेकिन सीट को आप अगर लंबा करना चाहते वो हो नहीं रही थी, वो काम नहीं कर रही थी, तो वो कह रहे थे जी आपको स्ट्रेट ही रखनी पड़ेगी सीट. पॉइंट ये है कि ये जो भी खरीदेगा पीआईए को, ऑब्वियसली एनी इंडिविजुअल हु बाइज पीआईए, उसको वो सारी चीज़ें फिक्स करनी पड़ेंगी, उसको सीट्स रिप्लेस करानी पड़ेंगी, उसको अपडेट करानी पड़ेंगी, उसको टीवीज अपडेट कराने पड़ेंगे, राइट. ही विल हैव टू रीडू अ लॉट ऑफ थिंग्स. मे बी शायद उसके अंदर जो रेडार्स वगैरह जो लगे हुए हैं और जो सारी चीज़ें लगी हुई हैं प्लेन के अंदर, उन चीज़ों को भी अपडेट कराना पड़े. लेकिन मेरा मकसद ये था सॉरी बोलने का कि यार अभी भी द फ्लाइट एक्सपीरियंस, द लैंडिंग, this smoothness of the landing, it was amazing. I was shocked at how good it was. मैं कतर वगैरह पे ट्रैवल करता रहा हूँ, मैंने उस पर भी ट्रैवल किया, एमिरेट्स पे भी बहुत ट्रैवल किया, लेकिन सीन ये है कि I don't think anyone has ever made such a good landing. इतनी स्मूथ लैंडिंग थी कि मैं एक्चुअली में शॉक हुआ था. बहुत अच्छी लैंडिंग थी. And I think that is props to them for that. They have not been given the resources to compete, sadly, with Virgin and अदर सच प्रोवाइडर्स. वर्जन भी बंद हो गई, डॉलर्स नहीं थे पाकिस्तान के पास. वो तो आप सोचो कि पीआईए इवन इफ इट्स जस्ट बेटर, पाकिस्तान से इतने एयर ट्रैवलर्स हैं कि आप उसको बेहतर करो, इवन इफ यू चार्जिंग एज मच एज वर्जन, और आपके जहाज बेहतर हालात में हैं, पीपल विल स्टिल पे इट बिकॉज दे वांट टू गेट टू देयर प्लेसेस डायरेक्ट, दे वांट टू गेट टू देयर डेस्टिनेशंस डायरेक्ट. लोगों को नहीं पसंद लेओवर्स, इट वेस्ट 5-6 आवर्स ऑफ देयर टाइम. आप यहाँ से पहले दुबई जाते हो, दुबई में 3 घंटे का लेओवर करते हो, फिर वहाँ से आप चलते हो दूसरे प्लेन पे जाते हो. हैसल है यार. तो तुम्हें हमारे पास ऑप्शन हो, मेरे पास ऑप्शन हो यार, लंदन जाना है, यहाँ से यार डायरेक्ट जाओ, क्या फर्क पड़ता है. एग्जैक्टली. वी पे मोर फॉर दैट कन्वीनियंस. We will take it. Sadly, Allah करे यार, inshallah it will sell, and to someone who knows what they're doing. I know the Qatar group was interested before. I don't know if they are now, especially with the legacy debt being taken off. They might be interested, और उनको रन भी करनी आती है अच्छे तरीके से एक एयरलाइन. I heard एक rumor था कि अलामा इकबाल एयरपोर्ट की जो ऑपरेशन साइड है वो भी that was being sold to either Qatar or Saudi. I did तो hear वो that. भी उसकी rumors थी, but I don't know if that fell through. नहीं, I Because think आपके आजकल हालात भी अब इतने अच्छे नहीं ना, but I think they are selling that. I think they are selling that. But talks चल रही हैं, अभी तक वो फाइनल नहीं. नहीं, मतलब वो प्लान था, लेकिन उसके अंदर फिजिबिलिटी के इश्यूज आ जाते हैं. अब हमारा एयरपोर्ट बहुत छोटा है यार अल्लामा इकबाल. आप सोचो ना जितनी ट्रैवल हो रही है उस हिसाब से आई फील लाइक द एयरपोर्ट इज नॉट लार्ज इनफ. And also just aesthetic wise, if you go to अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट, आपको इतनी, forgive my language, थोड़ी किरायत आती है यार कि गंदगी इतनी है, like it just looks like a very old airport. और उधर जो है वो It is a very old there are no airport. good restaurants in the waiting areas. It is a very वही पुराना मिस्टर कॉर्ड है जो सालों से उधर वो सर्व कर रहे हैं गंदी मिस्टर गॉड के जाके आप फ्राइज खाते हो, फिर पेट दर्द करता है पेट प्लेन दर्द में. करता है, फिर पूरा ट्रिप ही खराब हो जाता है. यार देखो, honestly yes there are no good restaurants. ऊपर ग्लोरिया जीन्स है लेकिन फारग वो भी अच्छा नहीं है खास. ऊपर और भी हैं कोई चीज़ें, लेकिन मतलब आप ठीक करो, लाइक ऑब्वियसली अगर दुबई वगैरह से कंपेयर करो या इस तरह का, इवन अगर आप मलेशिया वगैरह से कंपेयर करो इस तरह की चीज़ों से, तो बिल्कुल कोई सीन नहीं. लेकिन यार चक्कर ये है कि आई फील लाइक the size is more of an issue rather than the restaurants inside it. Restaurants का तो ये भी होता है ना, people aren't opening their restaurants there because there is no need for them to do it. लोग जाते हैं, they don't really eat anything there. ठीक है, वहाँ पे बैठते हैं, अपनी फ्लाइट पे चढ़ जाते हैं. It's not like दुबई में लोग स्टॉपओवर्स कर रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पे फ़र्क हिसाब होता है. Yes, there is a need कि एक दो अच्छे रेस्टोरेंट्स खुल जाए, लेकिन that's not on sort of the people who are managing that, क्योंकि वो रेंट आउट करना होता है और जो रेंटल पे करना चाहे वो पे कर दे. तो I guess maybe people didn't want to pay the rent. We don't know for sure क्या सीन है. लेकिन I know कि 2-3 साल पहले they were looking into building a new airport that would be larger than this, and obviously aesthetically भी बेहतर होगा, and maybe they would have shifted this just for local sort of flights, but that's been scrapped I believe. और इन्होंने इसको थोड़ा सा expand किया था, इसका runway I think थोड़ा सा expand किया था. I feel like that was the wrong decision, क्योंकि अब if our air travels increases further, तो अभी जितना रश पड़ा होता है एयरपोर्ट पे, वो रश तो it's going to multiply. अब वैसे साथ मेरे कुछ सवाल थे which we didn't plan कि we talk about, लेकिन मैंने कहा कि आपसे बेहतर कौन है जिनसे ये बात की जाए. पाकिस्तान में 2
schools of thought अब बन गए हैं आहिस्ता आहिस्ता, especially when we talk about the youth ना कि आगे what they want to do with their future. पाकिस्तान में आपको पता है महंगाई बढ़ रही है, employment opportunities बहुत कम है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, and law and order situations हैं, Sad. and unfortunately meritocracy is dead. आप Yeah. किसी भी organization में जाओ तो how good you are does not dictate कि आपकी कब promotion होती है I या agree. आपको कब आपका salary increase आपको मिलती I है. agree. ये सारी चीजें they are just merit को बिल्कुल ही वो डस्टबिन में फेंक I दें. agree. तो some like many I feel कि many Pakistanis feel now, especially the youth, कि they should look for greener pastures. They should go abroad. They should look to go to Turkey, Germany, Japan, the US, the UK, where आपको वो sense of security ज़्यादा है, where income is more, where there's more appreciation for good young talent. तो आपके इस पे क्या थॉट्स हैं? मेरे तो अपने व्यूज हैं कि I would love to hear if them, but- such, हाँ, and I will tell you इंशाल्लाह after I hear your thoughts. लेकिन आप बताएं कि जो बेचारा जो यूथ है, जो मायूस है, जो पॉलिटिकल सिस्टम से भी बहुत ज़्यादा तंग है कि मैंडेट जैसे चोरी किया गया इन दिस प्रीवियस इलेक्शन, दैट वाज वेरी क्लियर टू सी फॉर एवरीवन. तो एक होप जो है वो लोग लूज कर रहे हैं इन द कंट्री. तो डू यू प्रपोज कि the Pakistani youth stays back, or do they go abroad, look for greener pastures, like find that perfect life for themselves? मैं देखो किसी को ये नहीं कह सकता कि वो रुके, ना मेरा हक है किसी को बोलने का. Everyone's life is their own. Everyone deserves to live it how they want to live it. The fact of the matter is कि मेरे लिए I could go abroad. I felt like staying in Pakistan. For a lot of people that is not the case. They feel like going abroad is their only option. But what I always say is if you don't like something, change it. Inshallah, if I am ever giving employment to over 500,000 people or 1,000 people, I will make sure that the youth feels like they have an opportunity to prove themselves and to sort of get promoted on time. But yes, legacy wise, मतलब आप packages mall को भी देख लो, packages के sorry group को भी देख लो, not just their mall. The salaries being offered aren't competitive at all, right? And I feel like आप इस तरह की और companies को देख लो, working hours बहुत ज़्यादा हैं, and they're not giving you the opportunity. They're not increasing your salary on a basis that of like, even यार वो आपको उस पे भी नहीं increase करते. No, they're not in line with how much inflation there is. Last year I feel like our inflation numbers were what 21.7%. This year 38%, 38%. नहीं that was only for 1 month. That was one. But you are right about one thing. 2022 में I feel like there was an economist who said our official numbers were around 22%, and the economist said Over the year, over the course yeah of the year. over the course of the year. I think in one specific month it was like I close think to 30%. the all-time high was Yeah, that was for 1 38%, month. That was for 1 month. But the economist, I forgot his name. He basically was telling us about what governments say in terms of the inflation metrics and what it actually is. So he measured Pakistan's inflation to be around the 40% mark for the entire year, not just for 1 month. ये काफ़ी सैड बात है, लेकिन होपफुली एंड आहिस्ता आहिस्ता ये रिड्यूस हो रही है. जहाँ तक IMF की एक बात के साथ मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ. IMF कहती है कि अपने इंटरेस्ट रेट्स और इंक्रीज करो. आई फील लाइक दे आर ऑलरेडी टू हाई. Our inflation numbers are not getting under control, and our interest numbers are what 22-23% interest rates pay out over. ये एक स्ट्रगल होगा गवर्नमेंट के लिए बिकॉज दे आल्सो हैव टू लुक आउट फॉर द इम्पोवरिश्ड पीपल. जो No, गरीब हैं पाकिस्तान में, उनके लिए भी सोचना है कि रमजान में भी जितनी महंगाई होती है अब लोगों के लिए बहुत मुश्किल है अफोर्ड करना. It's very difficult. Yeah. तो लेकिन दे हैव टू आल्सो इट्स अ बैलेंसिंग एक्ट, क्योंकि उन्होंने IMF की कंडीशंस मीट भी करनी है. बिकॉज आपने द रीजन वी आर इन 25th IMF लोन जो अभी जून जुलाई में मिलेगा इज बिकॉज वो इम्प्लीमेंटेशन लैकिंग होती थी. जैसी IMF कुछ कहती थी ना कि ये पॉलिसीज हैं जो आपने करने हैं, यू हैव टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स, यू हैव टू हैव अ फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट. तो फिर पीछे कोई फाइनेंस मिनिस्टर होता था PMLN का, पीपल्स पार्टी का, जो भी PTI का, who would contest that and would say कि नहीं हम ये करेंगे तो then we'll get out of this financial crisis. लेकिन वो फिर बढ़ता गया. हमारा
फिर डेट भी बढ़ता गया ओवर द इयर्स एंड सो आई फील कि इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूरी है इम्प्लीमेंटेशन के अलावा कोई और हल नहीं है अभी भी हमारा डेट इज नॉट आउट ऑफ हैंड अभी भी हम पकड़ सकते हैं इसको honestly I'm not joking अब या यूएस का डेट देख लो इट्स मैसिव राइट जापान का डेट देख लो बट यूएस का तो दे कैन अफोर्ड टू हैव दैट डेट बिकॉज यूएस इज अ मनी प्रिंटिंग मशीन और डॉलर की हमेशा डिमांड रहेगी but they're printing their own money and they have their debt in their own money it's not नहीं आई थिंक ये यूएस और पाकिस्तान का कंपैरिजन इस तरह नहीं हो सकता नहीं, नहीं, बिकॉज यूएस की आप सॉफ्ट पावर देख लो उनका इतनी करेंसीज हैं अब्रॉड दैट आर डिनोमिनेटेड यूएस को छोड़ दो वैसे मैं बात कर रहा था कि ओवरऑल यू कैन हैव अ लॉट ऑफ डेट खैर जापान हैज अ लॉट ऑफ डेट राइट बांग्लादेश हैज अ लॉट ऑफ डेट उन्होंने अभी आईएमएफ से लिया था फिर से but the US can't be bankrupt like they can't be in a debt crisis if that happens like Pakistan the world economy is going to fail बिल्कुल yeah so that's why I'm saying कि with Pakistan we were facing the issue like we were about to default yeah definitely last year definitely we would have 100% defaulted if not for हाँ तो फिर it is important to pay back the debts ना ये मेरी argument है we have to pay back the debts. But what I'm saying is the debts are not out of hand yet. They could get out of hand if we struggle to sort of start paying off those debts. If अगर हमारी exports are not above our imports, हमारी नहीं होती सही वो. If we can't sort of start actually paying off the debts, paying off the interest, we are going to struggle in another 5, 7, 8 years. It's going to be an issue. इसका हल जो है वो क्या है डेट्स को पे ऑफ करने का the only thing we can do is further increase exports and decrease imports और I don't know how you're going to do it because sadly गाड़ियाँ तो obviously आपकी import ही हो रही होती हैं सारे Not parts just गाड़ी सारे parts basically मैं दोस्त से बात कर रहा था कि even जो एक चाय का कप है जो मजदूर पीता है ना at the end of a very long day उसमें जो चीनी है वो इम्पोर्टेड है उसमें जो टी बैग है वो इम्पोर्टेड है चीनी तो फिर लोकल है जिस कप चीनी at times वो इम्पोर्टेड होती है नहीं लेकिन आप मेरा पॉइंट जो आप yeah no your tea is imported though like आपका टी बैग आपकी चाय ये सारी चीजें इम्पोर्ट इवन वो जो कप जिसमें आप चाय पी रहे हो वो भी चाइना से वो इम्पोर्ट होता है exactly ये तरीका नहीं है we need to increase the amount of production in Pakistan we have such a large labor force इतने लोग अगर रोजी रोटी को बोल रहे हैं ठीक है इतने लोग अगर कह रहे हैं कि हमारे पास जॉब नहीं है we don't have work आप उनको जॉब्स में लगाओ do stuff that makes sense and build stuff in Pakistan rather than importing it ताकि आपका जो इशू है जो इतना बड़ा बर्डन है आपकी इकॉनमी पे वो रिड्यूस हो अब क्रॉकरी तो आप पाकिस्तान में बना ही सकते हो यार आई फील लाइक वी आर स्मार्ट इनफ कि हम यहाँ पे एक अच्छी खूबसूरत सी क्रॉकरी बना सकते हैं लेकिन इट्स स्टिल बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना अ लॉट ऑफ स्टफ इज बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना आपके हॉट पॉट्स ये सारी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट हो रही हैं बड़ी देर तक तो जी ये पैन्स वगैरह भी इंपोर्ट ही होते रहते हैं अब आई फील लाइक पाकिस्तान में बनना शुरू हो गए हैं एटलीस्ट ये स्टील की देचकियाँ वगैरह जो हैं विच इज़ गुड लेकिन लॉट ऑफ स्टफ इज स्टिल बीइंग इम्पोर्टेड पहले तो देखो ना आप जाते थे किसी शॉप में बिस्किट्स वगैरह भी इम्पोर्टेड ही पड़े होते थे नाउ फाइनली जब उन्होंने वो बैन लगाया था 2 साल पहले आई थिंक अब तो उसकी वजह से बड़ा इम्प्रूवमेंट आया इस चीज़ में कि आपकी ड्रिंक्स बाहर से कोक लोग बाहर की पी रहे होते थे यार बाहर की कोक पी के क्या करने लोकल कोक पी लो अगर आपने कोक ही पीना है लोकल कोक पी लो खैर वो अब बॉयकॉट करो वैसे अवॉइड करो सारे नेक्स्ट कोला पियो लेकिन ये सारे फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है यार हम क्यों अपने मुल्क के लिए नहीं सोचते हम हमेशा अपने लिए सोचते हैं एंड दिस इज आई फील लाइक दिस इज व्हाट्स कॉजिंग द डाउनफॉल इन पाकिस्तान दिस इज व्हाट्स कॉजिंग द फैक्ट के जो हर ब्यूरोक्रेट है लाइक हर तो नहीं लेकिन 70-80% ऑफ ब्यूरोक्रेट्स दे हैव देयर ऑनर ऑफर सेल दे विल सेल देमसेल्व्स टू द हाईएस्ट बिडर दैट्स नॉट हाउ इट शुड वर्क राइट आपको अपना ऑनर नहीं बेचना चाहिए कभी भी never ever sell your honor never ever sell your repute क्योंकि once your repute is lost it's not going to come back redeeming yourself is very difficult never letting yourself fall is much easier तो बाकी अल्लाह करे हमारे व्यूअर्स ये बात समझें इंशाल्लाह and I hope they can help our country in some way or another बाकी हम बात करते हैं which is I feel like it's a big issue and for me it's a point that I feel very sad talking about. It's the professional beggars in Pakistan,
and the begging mafia of Pakistan. It's a leech on this country. आपने एक फिगर मेरे से शेयर किया था जो मैं काफी डिस्प्यूट करना चाह रहा हूँ। कर ले dispute. I can't be तो certain. मैं व्यूअर्स के लिए I can't be साथ मेंशन कि ही रेड एन आर्टिकल। Yeah. कहाँ का आर्टिकल था? Yeah, it was a study by UMT. UMT की स्टडी थी कि पाकिस्तान में देयर आर 15 मिलियन 25 million 25 मिलियन professional beggars. Yeah. जो कि मेरी तो समझ से बाहर है, क्योंकि अगर आपकी पॉपुलेशन 240 मिलियन है तो उसमें That's से almost more than 10%. more than 10% Yeah, of that's the almost- population cannot be beggars। अब ये मुझे पता नहीं UMT वालों ने कहाँ से ये I feel like it's too much. मुझे लगता है कि आपने ना डॉट थोड़ा नहीं देखा ना, 25 या 24 नहीं, वो 2.5 होगा, 2.5 मिलियन। No, it was 25 I saw. मैंने दोबारा चेक किया था. I don't know. देखो नहीं 2.5 तो बिल्कुल नहीं होगा. 2.5 लाख बेगर तो लाहौर इससे ज्यादा तो लाहौर में बैठे होंगे. 2.5 मिलियन मैं कह रहा हूँ। अच्छा 2.5 मिलियन. 2.5 मिलियन is reasonable। It sounds like an actual number के हाँ बेगर शायद इतने 25 हो। लाख. हाँ 25 लाख 2.5 मिलियन। यार पता नहीं. Don't you think that's too low? I don't know man पता नहीं, चलो UMT वालों से ही पूछेंगे कि यार इन्होंने ये कहाँ से निकाला ये UMT नंबर। वालों प्लीज कमेंट करो इस पे. बट हम बात कर रहे थे प्रोफेशनल बेगर्स। Yeah, forget it. ना सोचो इतना तो मुझे भी नहीं लगता होगा, लेकिन इमेजिन करो पाकिस्तान की 70 to 80 लाख पीपल प्रोफेशनल बेगर्स हैं पाकिस्तान में. इतने तो होंगे एटलीस्ट. करोड़ बंदा तो होगा. 70-80 लाख हम लोग कहते हैं कि हैं. That is a leech on your economy. These people are not contributing to the GDP. They're not contributing to your economy. ये उन लोगों से पैसे ले रहे हैं who are actually working, who are actually earning money, who are actually providing services to this economy. और वो क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, खड़े होकर बस कह रहे हैं कि हमें पैसे दे दो. ये अलाउड नहीं होना चाहिए. लॉफुली तो ये अलाउड नहीं है. इन योर आपकी लॉ में तो बेगिंग इज सॉर्ट ऑफ एन ऑफेंस. आई थिंक 3 years का जेल सेंटेंस कैरी कर सकती है ये, लेकिन ऑब्वियसली ये इम्प्लीमेंट नहीं होता. मकसद ये है कि यार आप सोचो कि 70 to 80 लाख पीपल हैं, इसमें से आप समझो कि 10 लाख पीपल, 80 लाख बेगर्स हैं. 10 लाख आप समझ लो कि प्रॉपर्टी एक्चुअल में काम नहीं कर सकते. दीज पीपल आर डिसेबल्ड, दे कांट वर्क. ठीक है, साइड पे कर दिया उनको, 10 लाख को छोड़ दिया. 70 लाख लोग हैं. 70 लाख people who are potential laborers. This is a massive number of people. If they go into cottage industries, that could increase the GDP of your country by 5 to 7%. ठीक है? Depending on obviously how good they are, how efficient they are. लेकिन a lot of factors come into play. ये इस तरह अलाउड नहीं होना चाहिए. और ये this has become a joke, you know. This has become a joke. पाकिस्तान में begging का इतना बड़ा माफिया, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है. 90% of the beggars caught abroad, sadly. ये इतनी एक shameful statement है. 90% of the beggars caught abroad are Pakistanis. यानी caught abroad क्या मतलब है? जो उनको जो arrest करते हैं सऊदीया में, ईरान में. That's shameful. Shameful. इतना बड़ा begging का culture क्यों है पाकिस्तान में? Why do we ask for stuff? Why don't we work for it? आप किसी beggar को रोक के बोलोगे ना कि यार आओ मैं तुम्हें काम देता हूँ, मैं तुम्हें 20-25 हज़ार रुपये प्लस रूम एंड बोर्ड देता हूँ, रूम एंड फूड देता हूँ. He will never come, क्योंकि वो एक दिन में 3-4 हज़ार रुपया कमाते हैं. ये एक दिन में 2-3, 4 हज़ार रुपया कमाते हैं. They're earning more than some people who are working 12 hours a day. They're earning more than your laborers. That's not on. I will suggest to everyone watching this, please do not give money to people who are begging on the street. If you need to give money to someone, give it to someone who's working hard. Give it to a guard outside a bank. Give it to someone else. Do not give it to professional beggars. Because these people do not deserve your money. These people need to be off the streets and working and actually contributing to the GDP of your country rather than being a leech. Absolutely. Very well said. Very well said, sir. We need to stop the leeches. Plus, सबसे बड़ा issue जो ये है, this actually increases and leads to child abductions. ये children abduct होते हैं, they're being used, ठीक है, they're being sold into sex slavery and stuff like that. अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह. और फिर ये बच्चे use होते हैं for begging. It's pathetic, man. It shouldn't be allowed. और ये पीछे इनके बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं. They're very rich
जो लोग इनके पीछे बैठे हैं जिनसे ठेके कलेक्ट करते हैं, they're making a lot of money. वो क्रूजरों पे घूमते हैं, they're better off than us. This needs to stop. इन लोगों को पकड़ना चाहिए. I feel like there are certain things that are inexcusable, and the fact कि इसको ऊपर कोई crackdown नहीं होता, that is inexcusable. Yeah. ठीक है. But that was very, very well said again, Saad. Thank you so much. And I think this marks the end of our podcast together. Thank you so Yes. much again, Saad, for Thank you. taking out the time. यार You're बड़ा अच्छा very लगा welcome. बात करके. You're very welcome. ये बातें यूजुअली कॉफी बीन में होती हैं. अच्छा है कि ये रिकॉर्ड हो गई हैं घर में. But thank you for the audience, जो भी who has been watching up to this point, and we hope to bring you more videos like this. Inshallah, कोई भी inshallah. आपके ideas हो for content, any topics you want us to cover, आप comments में भेज सकते हैं. Thank you so much again. Take care and Allah Hafiz. Thank you everyone. Allah Hafiz, and please do more for your country, everyone. Allah Hafiz.